ठीक ही. Hope you're all good and God is good. Yes, amen. God is good. All the time. God is good. Yes, our God is always good no matter what seasons come. Though summer comes, though it rain, though we may be sick, though we may be lying down in our bed or whatever we do, our God is always good and He's always there for us whenever we need Him. So let's always praise Him, and as we come here today to worship Him again, let us make our heart ready to accept God's words through our pastor who will be sharing us later on. But before we go into that, I would like to thank our worship team once again. And I saw one of our members coming. It is our prayer. I would like to thank our worship team, Martina, Sister Eli, and Brother Luke for leading us into the heart of worship. Through the songs, we are blessed. You know, it's not just the preaching that we always yearn for, but sometimes even our soul yearn for that spiritual songs which renew our souls. Through that, when we add up the preaching, the sharing of the word of God, it is the combo, best combo. Yes. So as we say, as I'm working in a retention company, we say there is best combo offered to customer. So best combo offered to being a Christian. The offer that we should always look for is not just the song, not just the word of God, but together that is the word of God as well as the songs, that is the gospel songs, the spiritual songs which we being Christians renew our faith each day. So before we go into further, let me read one scripture. Let me read out from Galatians. Let me read two, which will be from Galatians. Galatians chapter 5, verse 22 to 26. It is about walking in the Spirit, and it is about the fruit of Spirit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law, and those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. So this is the word of the Lord. As it directly says us here that we being Christians, we being believers of God, what our qualities that we need to have, it is very important. Besides people, कहाँ जाएगा, like we are Christians बोलेगा हमेशा, we should not, uncle used to say, we should not चुपचाप रहे कि we are Christian, we are praying, we are reading Bible, but we should also show our quality that is within us. वो लोग हमारा friends लोग हैं non-Christian or Christian भी हो सकता है, those who don't go to church, those who are away from God, let them learn something from us. Like through the one which I'm reading, आप लोग भी हिंदी में तो मैं बोल नहीं सकता, फिर भी Yes, you're doing. let's create this, let's make these qualities as one of our self-important qualities, and let's take an example to look forward and to lead an example as a Christian life. So before moving to the preaching today, कोई ये आज साक्षी देना चाहते हैं? Is there anyone who would like to share a word of God or a small testimony that you have through the whole week? कोई है तो आ सकते हैं. Okay. कोई बात नहीं है, ठीक है. I know it's all God's presence, that God is working with all of us, that we don't have anything to share to. That is also another miracle, you know. If we have problem, we should have come and share. But the thing is that we are all we're too good. That God is too good to us that He make us fully satisfied with our works, with our whatever things we do. And before moving on, let me share one thing. The last past Sunday, the day when I'm about to lead, I had a dream actually. That day there were lots of testimonies given, so I was keeping it for today.
thinking that I won't lead, but morning Sister Rose chatted me up and said that this opportunity, Paul, you lead it. She told me, yeah, I'm ready for it. Actually, I'm ready from last night, but I thought that people already take it, so I was just keeping quiet. Usne bola, nahi, you lead it, so I lead today. And let me also say that small dream that I had. That dream actually, it was really unexpected. I was sleeping and I don't even think that, yeah, I'll be leading, I know, but I was not even preparing or thinking anything about this church or anyone around here. But I had a dream. That dream was very beautiful. It is like this. I was with Martina, and then there were lots of kids and there were lots of congregations in the church. I saw everyone, सब लोग को देखा था मेरे सपना में, and uncle को भी देखा. And then me and Martina we were discussing. So this time, let's do like we are planning about the church. Like this after this Sunday school with children, let's have that worship again. So I saw many people whom I know, even from Manipur, even my own friends from company, and मैं बहुत खुश था सच्ची में. Like I was thinking, and then it is like reality, The church was full of people, and then even there was Sunday school children again, and then Martina and me were talking about that. Let's prepare that song for the children and let's teach them. So we were talking about that, and that was truly, I should say, that is our dream. God used to say that our dream is to make this church big, and not just big, but with lots of believers coming, right? So I am very happy. That was my small dream which I have, which I saw it, and then which I feel it. So I'm praying, and then let's all pray that, let's all feel that day, that moment together, all of us, one day. So let's always pray for this church, no matter what we may be doing, or no matter wherever we are. Let's always pray for this church, for our Savior Church. Now I'm a member, so I will say, let's pray for this church. Yes. And whoever don't come today, there's Sister Rose is in Guwahati, and then Jujan is still looking for a rent. Let's also remember him in prayer. So moving on forward, now let's have the flesh, the spirit of flesh. So I give this time to our dear beloved pastor. Wow. Someone take anytime. Okay, yeah. Okay. So, hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Such a wonderful, such a joy, such a wonderful, hallelujah. Permission, such much. It was my prayer. I was asking Lord, किसी को प्रभु दर्शन दीजिए, बोलिए, reveal it to our people, our church here. That was my heart's cry. Hallelujah. I was praying, Lord, तो हमारे जो ये झुंड है दिल्ली में, प्रभु किसी के द्वारा किसी को रिवील कीजिए. Speak Lord. हमारी चर्च की दुनिया, I took your name of our church people, and I was praying, Lord, किसी को बोल दिए. Speak. Hallelujah. And God is good. God has spoken to all. His really Bible का Paul जैसा बनने जा रहे हैं. Hallelujah. I'm so happy. I'm so glad that God is good. God is good all the time. Yeah. He speaks. He reveals His secret. Unless He reveals His secret, वो अपनी रहस्य की बातों को बताए बिना कुछ करता नहीं है. Amos 3:7 में कहता है ना. And that's not my verse today. I'm just remembering. So God reveals His secret. परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं उसको बताता है. पहले बताता है, फिर करता है. बताए बिना कुछ करता नहीं है. That's what Amos 3:7 में यही लिखा है. इसलिए I was praying, Lord, show the windows of opportunity क्या है. जैसे पॉल ने देखा, मार्टिना को देखा, हम सबको देखा. क्योंकि ये चर्च परमेश्वर के लिए परमेश्वर का योजना है. इसलिए सचमुच परमेश्वर का योजना है. That's why God has spoken this. मतलब है परमेश्वर का योजना है. इसलिए ये कलीसिया है. नहीं, इसमें लोग आएंगे. परमेश्वर ये सुसमाचार जो है
हमको लगता है, हम ही तो अभी शेयर कर रहे हैं दिल्ली में ना, ये सुसमाचार जो हम लोग शेयर कर रहे हैं ना, दिस गॉस्पेल, वी आर शेयरिंग दिस गॉस्पेल, ये गॉस्पेल हमारे पास है ना। अभी बहुतों को हम लोग दिल्ली में दे रहे हैं, बहुत लोग अभी व्हाट्सएप के जरिए है, हम लोग का पास्टर का जो ग्रुप है, मैसेंजर के जरिए मैं भेजता हूँ, फेसबुक के जरिए ग्रुप्स में, कहा 50,000 का ग्रुप है, कहा 1 लाख का ग्रुप है ना, तो मैं वर्ल्ड वाइड में भेजता हूँ। क्यों भेजता हूँ? दिन रात मैं इसमें, आई कैन नॉट होल्ड माई सेल्फ, मैं उसको को नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता, क्योंकि देखिए क्यों नहीं रोक सकता, पर्पस से, परमेश्वर का उद्देश्य है, ये गॉस्पेल इतना जरूरी है। देखिए ये गॉस्पेल ओरिजिनल गॉस्पेल है, इसीलिए पौल कहता है ना, कोलोस कितना में ना क्या था, रोमन 2:16 साइड, कोई पढ़ देगा इसको, 2:16 साइड ना, रोमन 2:16, ओके ना, रोमन्स 2:16, remember, In the day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. according to my gospel, पौल कहता है God will judge the world according to my gospel. Paul says, उसका gospel, पौल जो प्रेरित ने प्रचार किया है, ये gospel के द्वारा ही संसार को जज करेगा, दूसरा gospel के द्वारा नहीं। इसलिए देखिए, जो हमारे पास जो गॉस्पेल अभी हम जो प्रचार कर रहा है, अभी हम जो हल्ला कर रहे हैं दिन रात ना, एक वायरल बना रहे हैं, मैं वायरल कर रहा हूँ, मेरा ये गॉस्पेल को वायरल कर रहा हूँ एवरीवेयर, यू विल सी व्हाई आई एम डूइंग दैट, बिकॉज दिस इज द ओनली गॉस्पेल। पॉल सेज दिस गॉस्पेल, ये गॉस्पेल परमेश्वर का गॉस्पेल है जो पौल को दिया है परमेश्वर ने। इसी गॉस्पेल के द्वारा ही परमेश्वर क्या करेगा, लोगों को जांच करेगा। ये गॉस्पेल जिन लोगों ने नहीं सुना, ये गॉस्पेल जो लोग नहीं सुनेगा, ग्रहण नहीं करेगा, खतरनाक है। इसलिए आप लोग हर एक अपने रिलेटिव्स से, नेबर से बताइए, ये गॉस्पेल के बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकता। सबको बोलिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जैसे कर रहा हूं सबको भेजता हूं, मैं वर्ल्ड वाइड भेजता हूं, फेसबुक इंटरनेट में पब्लिक है। क्यों कर रहा हूं? Why? That the people know the gospel, परित्राण को पाए, salvation को पाए, उद्धार को, मुक्ति को पाए, पाप से छुटकारा पाए, शैतान के बंधन से छुटकारा पाए, डिलीवरेंस को पाए, हीलिंग मिरेकल पाए। इसी गॉस्पेल में salvation है, इसी गॉस्पेल में सक्सेस है, इसी गॉस्पेल में हीलिंग है, मिरेकल है, इसी गॉस्पेल में उद्धार, मुक्ति है, धार्मिकता है, salvation है, पवित्रता है इसी गॉस्पेल में, हालेलुया, पावर है इसी गॉस्पेल में। ये गॉस्पेल साधारण नहीं है। देखिए कितना में बोला था, हम लोग कहां पे पढ़ा, रोमन चैप्टर 2 वर्स 16 में पढ़ा। देखिए बाकी देखिए ऊपर में आप 6, 7, 8 में पढ़ेगा तो देखिए, छोटा सा पाप भी करेगा नरक जाएगा। आज ना एक भाई ने, मैंने देखा फेसबुक में, एक महिला, एक लेडी ने, वो रो रही थी, नरक देख के आया, नरक जाकर आया, नरक में क्रिश्चियन लोगों को देखकर आया। वो भी क्या है, बोले क्रिश्चियन लोग जो यीशु को ग्रहण किया है, वो क्रिश्चियन लोग भी अपना जीवन दिया, वो क्रिश्चियन लोग भी नरक में। बोलते हैं छोटा छोटा गलतियों की वजह से, इंग्लिश में है ना, आप लोग कोशिश करिए, सुनते रहने से इंग्लिश को भी समझ जाएंगे ना, पूरा समझेंगे ना। सुनिएगा, मैंने हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप में दिया, सभी ग्रुप में दिया,
मैसेंजर में दिया, फेसबुक में कितनों को दिया, सबको दिया मैंने, वर्ल्ड वाइड दे दिया मैंने, और लिखा देखिए वाई, क्यों क्यों बोले, क्यों बोले, क्यों क्रिश्चियन लोग क्यों नरक में? वो कोई ना सोच के ऐसे बना के नहीं बोली, वो जाके देख कर आई है। 20-25 साल पहले हमारे गांव में भी, 20-22 साल पहले एक महिला ने सपना में देखा, वो भी देखा, अरे उसका पास्टर जिसने उसको पानी का बपतिस्मा भी दिया वो भी नरक में। बहुत खतरनाक है। देखिए इसीलिए बोलता है, पौल कहता है, पौल का सुसमाचार जो सुसमाचार है ओरिजिनल है, इसको मिलेगा, इसको ग्रहण करेगा, इसको सुनेगा, तब सल्वेशन मिलेगा, इसका मतलब परित्राण मिलेगा, इसका मतलब ना स्वर्ग जाएगा और संसार में भी आशीर्वाद मिलेगा। ये गॉस्पेल को जो कोई नहीं जानेगा, इस गॉस्पेल को जो कोई नहीं सुनेगा, वो लोग को तो बहुत खतरनाक है। लोग इसको कोई सुनने से गुस्सा करेगा, मगर बाइबल पर गुस्सा करेगा, हम पर नहीं कर सकता। बाइबल पर ये लोग गुस्सा करेगा। अभी मैं बताऊं इसको कहाँ है बाइबल में, अभी ये मेरा विषय नहीं है, हमारा समय कम है ना। बाइबल में खुद पढ़िएगा, जहाँ देखिए मैं बार लिखता हूँ, बिशप लोगों को भी मैं भेजता हूँ, अमेरिकन बिशप लोगों को भी नहीं छोड़ा मैंने, ये सब मेरा टीचर, मेरे गुरुजनों को भी नहीं भेजा, किसी को नहीं छोड़ा। क्यों? ये बाइबल है, मैंने नहीं लिखा। प्रेरित का 3:19 को सब लोग प्रचार करता है, मगर 22-23 को उसमें क्यों पॉल पीटर ने प्रचार किया? ये 22-23 में लिखा है, ये मोसेस ने कहा ये मेरा जैसा, कहाँ हंसो रहे? प्रेरित की किताब 3 अध्याय 19, 20, 21, 22, 23 में जो लिखा है, तो 19 को प्रचार करता है मगर 22-23 को नहीं जानता है। जैसे रोमन 3:23 को प्रचार करता है, 21 को नहीं जानता है, 24 को नहीं जानता है, 25 को नहीं जानता है, 26 को नहीं जानता है, नहीं जानता है कुछ, सिर्फ एक पद को जानता है। खतरनाक है। उस दिन हमारा एक सेमिनार में, एक दिन का सेमिनार में, एक पास्टर ये गॉस्पेल को पाया, उसने अच्छा से प्रचार किया और वो रिकॉर्डिंग करके खूब ना इच्छुक उत्साहित होकर उसने ग्रुप में भेजा ना, धार्मिकता के बारे में बोला। और वो एक पास्टर बोलता है ग्रुप में, एक वचन दे दिया, बोलता है यूहन्ना 16:8, बोले पवित्र आत्मा आएगा, पाप को दिखाएगा, धार्मिकता और न्याय करेगा, एक ही वर्ष को मुखस्त करता है, प्रचारक बनता है। हमने कहा जॉन 16:8 को जो बोला है उसको समझने के लिए आपको 16:8 को समझने के लिए 16:9 को पढ़ना होगा, 16:8 को समझने के लिए 16:10 को पढ़ना होगा, तब जाके आप 16:8 को समझेंगे। मैंने बोल दिया। देखिए वैसे ही है, जैसे रोमन 3:23 को लेके प्रचार करता है, प्रचारक बनता है, 21 को कभी नहीं पढ़ता है, 24 को कभी नहीं पढ़ता है, 25 को 26 को कभी नहीं करता। ऐसे इसीलिए गलत शिक्षा प्रिवेलिंग है चर्चेस में, इंटरनेशनली, सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल में ये हो रहा है। क्रिश्चियन लोग क्यों नरक जाएगा? क्योंकि ऐसे गोलमाल का वचन प्रचारक लोग प्रचार किया, इसलिए नरक भेज रहा है। वेरी क्लियर। इसलिए हम लोग बाइबल स्टडी करना चाहिए, बाइबल को पढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने बहुत लिखा, मैंने ये लिखा, सारे मेरे लिखा में लिखा हुआ उसमें सारा है, नोट्स में सारा है। देखिए मगर पॉल का प्रचार क्या बोलता है? गॉस्पेल जो पॉल ने यीशु मसीह से मिले, कहां से मिला? यीशु मसीह जो पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह स्वर्ग पुनरुत्थान के बाद
वो यीशु मसीह के साथ, सेलों के साथ नहीं था, यीशु मसीह के साथ नहीं था। पॉल द अपोस्टल, प्रेरित जो है, वो तो यीशु मसीह का मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद जब चर्च में रिवाइवल था, वो सबको दमन करने के लिए, खत्म करने के लिए, चर्च उसको मारने के लिए, काटने के लिए, पॉल ना क्या करता था ना, वो ऑर्डर लेके, हाईब्रिड से ऑर्डर लेकर मारता था, लोगों को सताता था। वो यीशु के साथ नहीं था, पीटर के साथ नहीं था। इसलिए जो ना उसको तो रास्ता में उठाया, चलो बोल के अंधा बना दिया, चलो हम यीशु है, तुम किसको देगा? प्रभु बोला, सल्वेशन उसको मिल गया। वो ना 12 साल बाहर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर ने ये सारा गॉस्पेल स्वर्ग से दिया। हिब्रू 12 का 25 में है और 26 में है। देखिए, इसलिए वहां पर भी बोलता है, ये गॉस्पेल को जो लोग नहीं सुनेगा, मुश्किल है, ये लोग हिल जाएगा, ये लोग, इसका मतलब है बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए पॉल बोलता है, ये जो गॉस्पेल है, जब मेरा गॉस्पेल है, इस गॉस्पेल के द्वारा ही परमेश्वर सारा जगत को न्याय करेगा। इसलिए आप लोगों को ये गॉस्पेल मिला, बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिला, मगर आपको घर में बताना होगा, आपको आस पड़ोस के लोगों को बताना होगा, दूसरे क्रिश्चियनों को भी बताना होगा। नरक जाएगा सब, नहीं तो। आज ये मैंने जो भेज दिया, मैंने ये एक भाई ने शेयर किया फेसबुक में, अच्छा लगा। सचमुच क्रिश्चियन लोग नरक जाते हैं, क्योंकि गोलमाल का प्रचार। इसलिए यही हम लोग पास्टरों को बुलाकर, हम लोग इकट्ठा करके हम लोग ना ट्रेनिंग देता है। ये क्वेश्चन, ये कंफ्यूजन वर्सेस जो है, उसको उठा के ना समझा देता है और बहुत खुश हो जाता है। तो हम लोग और भी बड़ा कार्य करने वाले हैं। देखिए, पॉल कहता है, यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट। अब यीशु मसीह हो, नया सृष्टि हो, यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट। क्रिस्ट में कंप्लीट हो, परिपूर्ण हो, होने की कोशिश नहीं, परिपूर्ण कर दिया गया है ना। देखिए, उसी में कहा, कोलोसी 2 का कितना में है, 8 में, 7 में ना, यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट। इसीलिए इसी विश्वास में बी डीपली रूटेड हो जाओ। कोलोसी 2 का कितना में पढ़िए। ओके, मिला किसी को? Yes, पढ़िए। Rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. With thanksgiving, abounding in it. इसी में भरपूर होकर, जो पौल ने प्रचार किया उसको लेकर, be rooted in it, इसी विश्वास में जड़ पकड़ते जाओ। क्या है? विश्वास से धार्मिक। You are complete in Christ। जो यीशु को आपने लिया, आप कंप्लीट हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताता है एफिसियंस 2 के 8 में, यू हैव बीन क्विकेंड टुगेदर। आपने यीशु का आपका क्या हो गया? पुनरुत्थान हो गया यीशु के साथ। हालेलुया, हालेलुया। अभी ना स्वर्ग में आपका आत्मा बैठा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, नरक में नहीं। हालेलुया, स्वर्ग में। ये गॉस्पेल जो लोग विश्वास करेगा, लेगा, स्वीकार करेगा, अभी बोलता है, यू हैव बीन क्विकेंड टुगेदर। आपको जिंदा किया गया। आपका आत्मा, मेरा आत्मा मुर्दा था, अभी आपका आत्मा, मेरा आत्मा जिंदा है। बोले जिंदा है। मैं यीशु में हूं। हल्ला करिए ना, मैं यीशु में हूं, मैं जिंदा हूं, मैं स्वर्ग स्थान में यीशु के साथ बैठा हूं। That's me there। बोले ये वो मैं हूं। बोले वो वहां यीशु के साथ मैं बैठा हुआ हूं। That's my spiritual position। ये आपका आत्मा बैठा हुआ है। ये गॉस्पेल है, ये पॉल का प्रचार किया हुआ गॉस्पेल है। हालेलुया। तो इसलिए इस विश्वास में जड़ पकड़ते जाओ कहता है। बहुत बोलना चाहता हूं, समय कम है। हालेलुया। अच्छा,
इसलिए बोलता है कोई मेरे हाथ से, नो प्रिंसिपलिटीज, नो पावर कैन टेक यू अवे फ्रॉम माय हैंड, बोलता है। यीशु मसीह जब संसार में था वो बोला कोई मेरे पिता के हाथ से आपको छुड़ा नहीं सकता है। So you are now in Christ Jesus. Your position, spiritual position, is position secured, ना पूरा ना आपको दिया गया है। इसलिए बोलिए रोमन 8 का 38-39 पढ़िए, फिर हम उसमें कोलोसे में फिर जाएंगे, कोलोसे 2 में फिर जाएंगे। 38. रोमन 8 का 38-39। 38 to 39. Yes. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus. In Christ Jesus, अभी यीशु क्रिस्ट में आप प्रेम में, उसके प्रेम में आबद्ध, you hide in him, in his love. टोटली अब यीशु के अंदर हो, यीशु के लव के अंदर हो, यीशु ख्रिस्त के अंदर हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कोई भी ताकत आपको, शैतान भी नहीं, कोई प्रिंसिपलिटीज, कोई पावर नहीं, ना नंगाई ना तलवार, जितना भी करो कुछ भी करो, परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकता। इतना ताकत है परमेश्वर का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ना वर्तमान ना भविष्य, even the bhavishya भी secured है। You are forgiven forever, for whole life। by gospel बोलता है you are forgiven, बोले I am forgiven for whole life। अभी संसार में कई लोग प्रचार कर रहा है ये gospel को, बड़ा बड़ा प्रचार, इंटरनेशनल में ये प्रचार चल रहा है। अभी बोर्ड पॉकेट में अंदर जगह जगह अभी भी पुराना वो करो मरो प्रचार कर रहा है। हाँ, मगर इंटरनेशनल में टॉप लीडिंग लीडर लोग अभी ये गॉस्पेल प्रचार करता है, ये गॉस्पेल हम भी प्रचार करते हैं दिल्ली में। मगर अच्छा से जो ध्यान से उसको स्टडी करेगा, ऊपर लेगा ना, बाद में कहीं नीचे और ये लोग गोलमाल डाल देता है। मैंने सुना अच्छा प्रचार, अच्छा हीलिंग मिरेकल भी कर हो रहा है ना, प्रभु कर रहा है, कोई बात नहीं, बाद में क्या है और उल्टा डाल दिया, अरे ला हो गया ये भाई। अच्छा है हीलिंग मिरेकल, हाँ, बाद में देखता हूँ अरे व्यवस्था डाल दिया, आखिरी में हो गया छुट्टी। देखिए इसीलिए अच्छा से सीख लेना जरूरी है। बड़ा बड़ा पास्टर लोग भी, बड़ा बड़ा प्रचारक लोग वर्ल्ड वाइड में ये लोग गलती कर रहा था, अभी इस लाइन में आ गया। अभी दुनिया में ये गॉस्पेल पूरा प्रचार हो जाएगा, सभी इस भाषा इस गॉस्पेल को लेगा, पोल का जो प्रचार किया हुआ गॉस्पेल को लेगा, तब यीशु आएगा। हम लोग इसका मतलब है यीशु आने के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। So this gospel will prepare the way Jesus to return। और ये रिवाइवल आएगा सारा दुनिया में। परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, यह है मेरे को प्रभु ने। तो देखिए इसमें पावर ऑफ सीन को देखा। पावर ऑफ सीन सिर्फ पावर, पाप का सामर्थ आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा, बोला बाइबल में। फिर से देखिए तो नहीं बोला ना, नहीं बोला ना, बोला नहीं बोला। बाइबल में वो पॉल ने जो लिखा दूसरा जगह में है, पाप परमेश्वर से अलग करता है, वो दूसरा जगह में बाइबल में ही है, मगर पॉल ने बोला पाप को उल्लेख नहीं किया। क्यों नहीं किया उल्लेख? मेरा प्रश्न था, अंदर ही अंदर सोचता था, अंदर ही सोचता था, पॉल ने इतना बड़ी बात बोल दिया, शक्ति सामर्थ प्रेशर पावर, ना तलवार ना नंगाई ना भूखा, सब कुछ बोल दिया, मगर पाप नहीं बोला। भाई मेरा सोचता अंदर में था। तो मैंने जब ये गॉस्पेल पाया तब जाना, अरे बोल रहा पाप का बल क्या है? बोले पाप का बल क्या है? क्योंकि आपको बोलना है मेरे साथ, क्योंकि आपको ऐसे प्रचार करना है। पाप का बल क्या है? पाप का बल क्या है? बोलिए जोर से, पाप का बल क्या है?
पाप का बल व्यवस्था है, लो है। कहां पर है ये वचन? बाइबल को थोड़ा थोड़ा याद कीजिए, नहीं होगा बच्चों। पहला कोरिन्थी 15:56, 1 कोरिन्थियन 15:56 हमेशा याद करिए। तो ये देखिए, पाप का बल व्यवस्था है, तो पाप का बल व्यवस्था है। देखिए, बोले पाप का बल व्यवस्था है। जब व्यवस्था है तो पाप शक्तिशाली है, इसका मतलब है। बोलिए, जहां पर व्यवस्था है वह पाप शक्तिशाली है, और ये खुद को पापी पापी बोलेगा और ऐसे मर जाएगा, ये लोग नरक में जाएगा। क्लियर? इसलिए वो औरत ने देखा क्रिश्चियन लोग नरक में है। जो लोग ना इस गॉस्पेल को नहीं जानता है, ये लोग पाप 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 व्यवस्था को मानकर चलता है, धर्मी होने के लिए कोशिश करता है, ये लोग संसार में भी श्रापित होता है और मरने के बाद नरक भी जाता है। क्योंकि वास्तव में देखकर भी आ गया लोग, परमेश्वर इतना अच्छा परमेश्वर है, दिखाते हैं भी है। अभी हम लोग गोलमाल कंफ्यूज रहने की कोई जगह गुंजाइश ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। गॉस्पेल ले लो या व्यवस्था को लो, खत्म। इसलिए मैं इसमें आप कभी अब किसी को भी आपने क्रिश्चियनों को, अच्छा विश्वासियों को पूछे, यीशु मसीह ने मत्ती 6:33 में बोला, Seek you the kingdom of God first and His righteousness, then everything shall be added unto you. ना, पहले तो ढूंढो उसकी धार्मिकता और उसकी राज्य धार्मिकता, सब सारी चीजें तुमको दिया जाएगा। मगर गलती 3:10 में बोलता है, जो धर्मी होने के लिए कोशिश करेगा वो श्रापित है। जब आप ये 2 वर्ष इसको बता देंगे ना, बड़ा बड़ा अच्छा वचन प्रचारक लोग भी, हाँ कैसे हो गया, आपको मौका मिल जाएगा, सिखाने का मौका मिल जाएगा आपको। यही मैं करता हूं, लोगों को भी, भाई ऐसा बोला है मत्ती 6:33 में, फिर गलती 3:10 में बोलते हैं, जो धार्मिक होने के लिए कोशिश करेगा वो श्रापित है, और धार्मिक होने के लिए कोशिश करेगा तो अच्छी बात है। कैसे श्रापित हो गया? हाँ, श्रापित हो गया, और ये लोग मरेगा तो नरक भी जाएगा, क्योंकि ये गॉस्पेल नहीं है, ये सुसमाचार नहीं है, ये बाइबल में है। सोचता है ये बाइबल में तो है, इसको बोलने से, लेने से, मानने से हो गया, मिलेगा नहीं स्वर्ग, नरक मिलेगा। ये गॉस्पेल मिला आपको, पावर मिला कि नहीं मिला? ये आपके अंदर ये पावर आ गया, क्योंकि ये गॉस्पेल में ही पावर है, परमेश्वर का पावर है, आपके अंदर आ गया। इसमें ब्लेसिंग है, और इसको प्रचार करिए ना। जब हम यहाँ नहीं होगा, हम जाएंगे आसाम में 1 महीने के लिए ना, खड़ा होकर अपने एक दूसरे को सिखाइए, बोलिए, यही आपको सुपर पावर में ले जाएगा, जिंदगी में सक्सेस में ले जाएगा। ये गॉस्पेल है। हालेलुया। ये गॉस्पेल है, पावर है आपके पास। ये गॉस्पेल को आपने जान लिया। देखिए, तो क्या है ये, जो व्यवस्था को मानकर कोई धर्मी नहीं हो सकता, इसे श्रापित है। इसीलिए क्या है, व्यवस्था के लिए यीशु ने क्या किया, व्यवस्था को पूरा किया। यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया। He obeyed the law, he finished the law, he removed the law. Praise the Lord. ये अगर वचन मालूम नहीं है तो लोग जिंदगी भर कंफ्यूज होता रहेगा, जितना भी डिग्री क्यों ना हो उसको। देखिए, यीशु मसीह क्यों आया? To fulfill the law, to finish the law, to remove the law. रोमन 10:7
हिब्रू 10 का 7 पढ़िए, याद रखिए ये वर्सेस को याद रखिए। Then God will be able to use you। ये वचनों को, गॉस्पेल को लीजिए, ये गॉस्पेल ही पावर है, आपको अच्छा प्रचारक बना देगा, अच्छा बिजनेसमैन भी बना देगा, अच्छा नौकरी भी आपका हो, सब में सक्सेस होगा और अच्छा प्रचारक भी होगा। पढ़ लीजिए 10:7। Then I said, Behold, I have come. In the volume of the book it is written of me to do your will, O God। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, इसमें लिखिए आप फिर 9 में ना कहाँ पर है? And then he said, Before I have come to do your will, O God, he takes away the first and he may establish the second। Yes, establish the second। फर्स्ट को हटाएगा, सेकंड को एस्टैब्लिश करेगा। पुराना नियम को हटाएगा, ऑल कवेनेंट व्यवस्था को हटाएगा, लॉ को हटाएगा, 10 कमांडमेंट को हटाएगा, और क्या करेगा? अनुग्रह को एस्टैब्लिश करेगा। देखिए साथ में बोला, लो आई हैव कम टू डू योर विल। परमेश्वर की इच्छा क्या है? यीशु मसीह ने क्या करने आया? ये इसको अगर समझेगा नहीं, गॉस्पेल को समझेगा ही नहीं, ये लोग मत्ती मार्क को पढ़ेगा, अरे ऐसा है, इधर पढ़ेगा, अरे ऐसा है। इसको अगर कोई अगर ABCD नहीं सिखाएगा प्रचारकों को, ये लोग समझेगा भी नहीं। इसीलिए अभी आखिरी समय में ऐसे ऐसे पास्टरों को, टीचरों को, बाइबल को सिखाने वाला खड़ा कर रहे दुनिया में। अभी हम लोग को परमेश्वर ने खड़ा किया है इसको सिखाने के लिए। देखिए क्लियरली इसको सीख लीजिए तो आपको पावर मिलेगा। ये ढूंढने से नहीं मिलेगा इंटरनेट में, हम सीधा सीधा बताता है। बड़ा बड़ा पास्टर लोग क्या है, इंटरनेशनल वो लंबा चौड़ा समझा के ये सब समझाएगा, आपको सालों लग जाएगा। मेरे पास सीखेगा, एक दिन में सीख जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास सीखेगा, एक दिन में सीख जाएंगे। ध्यान सिर्फ देना है, विद हार्ट फुल ऑफ प्रेयर के साथ आपको बैठना है, एक दिन में सीख जाएंगे आप। हालेलुया। क्योंकि मैं स्कूल टीचर था पहले, आसानी से सिखाने के लिए कोशिश करता हूँ ना। कठिन को आसान कर देने के लिए मेरा काम है। मैं 15 साल तक मैं स्कूल टीचर था। नौकरी छोड़ दिया, कुछ नहीं मिला, छोड़ दिया, कुछ नहीं दिया। चलो नहीं चाहिए, आई डोंट लव द वर्ल्ड लॉर्ड, आई लव यू। मैंने कहा प्रभु आई लव यू बिकॉज़ तूने मुझसे प्रेम किया। रोया, कितना सालों रो के समय बिताया मैंने, गुरु के प्रेम को पाया, उसी डेडिकेशन, उसी ना, क्योंकि उसने मुझे जिंदा रखा। उसने जिंदा रखा मुझे, इसीलिए मेरे ना को पता है ना। जन्म भी नहीं हुआ था ना तुम्हारा, हुआ था 94 में जन्म हुआ। कब जन्म हुआ तुम्हारा? जन्म हो गया था 92 में, 93 में, हाँ जन्म हो गया था। 94 में ही एली तो पेट में थी, लुक छोटा था, इतना था कैसे से खेल रहा था। प्रभु ने मुझे जिंदा रखा आज, इसीलिए दिल्ली में हम लोग ना बच्चों के साथ हम लोग ना क्या कर रहा है, फुर्ती कर रहा है, मजा कर रहा है। हालेलुया, बल्ले बल्ले कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए प्रभु ने मुझे जीवन दिया, इसलिए मैं कुछ सोचता नहीं, पीछे उसे कुछ देखने का मेरा काम नहीं है, कोई काम नहीं मेरा देखने का। मैं नहीं कुछ नहीं देखना है मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, इसलिए ही अनुग्रह आप पर है। अभी सुन रहे हैं ना, यू आर गेटिंग द सेम ग्रेस, ग्रेस अपॉन ग्रेस, ग्रेस मल्टीप्लाई हो रहा है। विद हम्बल हार्ट यू आर लिसनिंग, सो ग्रेस इज मल्टीप्लाइंग ओवर यू। ग्रेस एंड पीस, ये ग्रेस आप सुन रहे हैं ना, यस ना, आप दे रहे हैं ना, पीस भी मल्टीप्लाई होगा जिंदगी में, आपको सुरक्षा देगा, सक्सेस देगा। हालेलुया, यही गॉस्पेल आपको संभालेगा, खड़ा कर देगा, मजबूत महिमा से भर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए
इसीलिए देखिए, तो ये पाप को हटाने के लिए एक ना वचन में हमेशा सब लोग प्रचार करता है, सोचता भी है, जीसस हैव कम मैनिफेस्टेड एंड डिस्ट्रॉयड द वर्क्स ऑफ डेविल कहता है ना, सब लोग प्रचार करता है। मैं भी करता था, अभी भी करता हूं, मगर उस समय नहीं समझता था, अभी समझता हूं। पहला यूहन्ना 3:8 ना, 3:8 ना, Jesus, Son of God, has manifested into this earth to destroy the works of devil. शैतान का काम कैसे नाश किया? जहां पाप है वहां शैतान है, करेक्ट स्टडी। जहां पाप है वहां शैतान है, ठीक है। अभी पाप को हटाने के लिए शैतान को हटाना है, और शैतान को कैसे हटाएंगे? परमेश्वर तो परमेश्वर है, धार्मिक है, उल्टा सीधा नहीं करता है, नियम के अनुसार कायदे से करता है। ऐसा नहीं है अभी तुम्हारा टाइम हो गया आउट, ऐसा नहीं करता है परमेश्वर। परमेश्वर ना नियम का परमेश्वर है। देखिए, पाप को हटाने के लिए क्या किया परमेश्वर ने? यीशु को भेजा, व्यवस्था को पालन करने लगाया। यीशु मसीह ने पूरा व्यवस्था को पालन किया 100 में 100%, ठीक है, और क्रूस पर सीधा कर दिया, इट इज फिनिश कर दिया, और व्यवस्था का अंत कर दिया, ठीक है। Christ is the end of the law for righteousness for those who believe. रोमन 10:4 में देखिए, रोमन 10:4 को देखिए, Christ is the end of the law। इसीलिए अभी कोई व्यवस्था बोलेगा, अच्छा है व्यवस्था भी ना, कहा होगा, ऐसा बोलता है हमारे गांव के लोग उधर, तो ये क्या है? यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देता है। पढ़ दीजिए, यू गॉट इट, ना यू गॉट इट, कोई भी मिला है? किसी को मिला? पढ़िए, जोर से पढ़ दीजिए। यस, पढ़िए ना, कोई भी प्लीज। नीता, For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. everyone who believe, देखिए, everyone who believe, जो विश्वास करता है, ख्रिस्त यीशु ही व्यवस्था का अंत है। मगर जो लोग विश्वास नहीं करता है, वो लोग व्यवस्था को पकड़ के रखता है, और ये लोग नरक जाता है। क्लियर? इसीलिए जो दर्शन मिला, जो भेजा नरक जाने के आया, किस लिए, क्यों क्रिश्चियन लोग नरक में हैं? ये लोग व्यवस्था को पकड़ के रखता है। अभी क्रिश्चियन लोगों को देखिए, देखिए, देखिए क्या प्रॉब्लम, क्या बहुत जटिल समस्या है यहाँ पर। बोल देखिए, करेक्ट, वेरी बिग प्रॉब्लम, वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। ये अब हम आपको मास्टर लोग बना रहा है, इसलिए जो कोई साधारण जो वैसे क्रिश्चियन लोग हमारे वचन को नहीं ग्रहण कर सकता है, इसलिए हमारे चर्च में थोड़े होंगे। बाद में आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पूरा फैल जाएंगे ना, प्रभु ने दर्शन किया, वो फैल जाएंगे, वो फैल जाएंगे हम लोग। हालेलुया, पोल का सपना पूरा हो जाएगा। बोलिए, यीशु का नाम में हो जाएगा, ये सपना हो जाएगा। बोलो, ये सपना हो जाएगा, ये दर्शन हो जाएगा इसी चर्च में। हालेलुया, भर्ती हो जाए, बोले भर्ती हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, अब लोग क्या है, अब लोग मास्टर बन रहा है। देखिए, देखिए, इसीलिए देखिए, जीसस इज द एंड ऑफ द लॉ फॉर राइचियसनेस फॉर दोज हु बिलीव, विश्वासियों के लिए। मगर जो लोग इस गॉस्पेल को विश्वास नहीं करता है, ये लोग Christ not at the end of the law, लोग व्यवस्था पूरा नहीं हुआ, तो ये लोग अभी व्यवस्था में हैं। जो व्यवस्था में है, ये लोग श्रापित है, ये लोग मर रहा है। चर्च में जाता है, बड़ा बड़ा चर्च में, मगर ये लोग मरा हुआ है। देखिए, सो रूडली क्यों बोल रहा हूं मैं, वास्तव है। अभी हाल ही में अभी देखिए, एक लेडी अमेरिका का पापा फॉरेन से, छोटा छोटा गलती के लिए भी न रखे। अरे छोटा छोटा गलती किसके पास नहीं होता है? तो ये लोग गॉस्पेल को, परमेश्वर की वचन को नहीं जानने की वजह से
मुक्ति उद्धार को ये लोग एक्सपीरियंस नहीं करने की वजह से ये लोग नरक जाएगा। क्योंकि हम लोग 2 कोरिन्थियन 5:21 को बोलते रहता है, नहीं साहब मैं मेरा ओरिजिनल बस में जाने के लिए अभी टाइम ही नहीं है, इसको लेके गए मैं जाने वाला था, अभी हमारे पास 10-7 मिनट है। क्राइस्ट देखिए, इसलिए जो पाप को जानता ही नहीं था उसको पापी बना दिया, जो पापी लोग हैं उनको धर्मी बना दिया। देखिए ये गॉस्पेल जानता नहीं है, लोग नहीं जानता है ये लोग, इसीलिए नरक जाता है। ये गॉस्पेल को जानेगा, मुंह से अंगीकार करेगा, नो आई एम इन क्राइस्ट जीसस, ना उसने मुझे धार्मिक बना दिया। यीशु जो पाप को जानता थे नहीं उसको पापी बना दिया, और हमको जो धर्मी नहीं था पापी था हमको धर्मी बना दिया। ये गॉस्पेल ने किया है। तो ये गॉस्पेल आपको स्वीकार करना है। ऐसे स्वीकार करने वाला लोग स्वर्ग जाएगा। कोई नहीं लोग सदा भी स्वर्ग में बैठा हुआ है, बाद में जाएगा वैसे नहीं, स्वर्ग में बैठा हुआ आपका आत्मा। हालेलुया। अभी ओरिजिनल में थोड़ा सा हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। कोलोसे 2:14-15 को देखिए, उसको कोशिश करिए पढ़ने के लिए, अपना ध्यान दीजिए। बोल दो ध्यान दिया, मेरा लिखा है वो, इसमें मैं लिखा था। द प्रिंसिपलिटीज पावर को कैसे मिटाया? जो आपके विरोध में जो लिखा था, कौन सा विरोध लिखा है, कौन सा हिसाब किताब कौन रखता था? व्यवस्था ने, अरे तुम पापी हो, तुम पापी हो, ये छोटा 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 तो गलतियां भी लिखता है। जैसे उस महिला ने नरक में देखा, छोटा छोटा गलती के लिए नरक में गया। देखिए तो क्या करता था, हिसाब की देता ना। पढ़िए उसको, 14 को पढ़िए ना। That was written against us। 1-2 लाइन पढ़िए, सिर्फ ज्यादा नहीं, समय बचाने के लिए। Having wiped out the handwriting of requirements that was against us, जो हमारे विरोध में लिखा हुआ था। एक पाप, छोटा 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 पाप भी, बड़ा पाप छोटा पाप, देखिए वो सबको मिटा दिया। हम लोग सीधा देखे मिटा दिया, पाप मिटा दिया, वो नॉट एनफ। किसने लिखने देता था? ये जरूरी है। क्या नियम था उस समय? लॉ था, व्यवस्था था, लिखता था। उसी व्यवस्था को हटा दिया, पाप भी खत्म, शैतान भी खत्म। बोलिए पाप भी खत्म, जोर से बोलिए ना। पाप भी खत्म, शैतान भी खत्म, प्रिंसिपलिटीज पावर भी खत्म। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक्साइटेड होना है। आगे पढ़िए इसमें। which was contrary to us, हमारे विरुद्ध में था, and he has taken it out of the way, having nailed it to उसको क्रूस पे खिल्ला मार कर ठोक दिया, खत्म कर दिया। इट इज फिनिश्ड। व्यवस्था को फिनिश किया। हमने हिब्रू में पढ़ा, इसलिए 7 में और 9 में, लो आई हैव कम टू रिमूव द फर्स्ट एंड एस्टैब्लिश द सेकंड। हिब्रू कहां पर ना 8:13 में भी है, पुराना को हटा दिया, नया को एस्टैब्लिश किया। इसलिए हम लोग वी आर द ग्रेस। ग्रेस पे क्या है? वी आर मेड राइचियस, सिनर्स आर मेड राइचियस। पापी लोगों को परमेश्वर ने धार्मिक ठहरा दिया। इसलिए मुझे परमेश्वर सपना में भी सिखाता है, God is based on the finished work of cross। जो क्रूस की तरफ देखेगा, जो क्रिश्चियन लोग, वो लोग स्वर्ग जाएगा। क्रूस में क्या किया? सिद्ध किया, पाप हटाया, व्यवस्था को हटाया, धार्मिकता को दे दिया। हालेलुया। इसलिए God is looking at the finished work of Christ। आपके कर्मों को नहीं देखता है। पुराना नियम में क्या था? आपके कर्मों को लिखता था, व्यवस्था में। तो क्रिश्चियन लोग व्यवस्था में है, वो लोग को लिखता है, ये लोग नरक जाता है इसीलिए मरने से। और स्वर्ग में भी, संसार में भी ये लोग श्रापित है। फर्क है। जो लोग विश्वास करता है, yes, Christ is the end of the law for righteousness, I am in Christ Jesus, he has made me right, I am righteousness in Christ Jesus। क्रिस्ट मेरे अंदर है। He that is in me is greater than it is in the world। He that is in me is greater than it is the world। I have overcome her, I have overcome। Jesus, परमेश्वर ने बोला, तो you have overcome, my children, you have overcome। I am child of God। बोलिए I am child of God, I have overcome, I am child of God। जोर से बोलिए, I am child of God।
I have overcome. He that is in me is greater than it is in the world. He that is in me is greater than it is in the world. जो मेरे अंदर है वो संसार में है उससे भी बड़ा है. सिकनेस से, बीमार से, ना गरीबी से, ना बीमारी से भी बड़ा है परमेश्वर. ख्रिस्त यीशु मेरी आत्मा में, हालेलुया. जब बीमारी मेरे शरीर में नहीं रह सकता. ऐसे बोल के आपको रूल करना है, शासन करना है. ऐसे बोलते रहना है, बोलते रहना, बोलते रहना. देखते देखते बीमार भी गायब. अच्छा हो गया, ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ा. चलो हालेलुया. चलिए खड़ा हो जाए. हम लोग धन्यवाद देते परमेश्वर को. ऑफरिंग भी लेंगे. यस, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. धन्यवाद हो. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. प्यारे प्रभु जी धन्यवाद हो. हालेलुया. तेरी महान आशीषों के लिए हम तेरी आराधना करते, धन्यवाद देते पिता. धन्यवाद. थैंक यू. We worship you, praise you. Hallelujah. 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 चलिए, you pray. ओके, छोटा प्रार्थना करके भी दें. प्यारे प्रभु जी धन्यवाद. महान परमेश्वर पिता, हम तेरी आराधना करते हैं. ये दान सभा के लिए भी दे. हम तेरी आराधना करें. धन्यवाद वचनों के लिए. आज प्रभु महान परमेश्वर तो हमारे बीच में तूने हमें समझाया, समझने दिया पिता. और ये लोग जो वचन सुनेंगे प्रभु ऑनलाइन में, ये लोग हर एक को आशीष दीजिए, उद्धार मुक्ति दीजिए, नरक में जाने से बचाए पिता. ये गोस्पेल सारे जगत में प्रचार किए जाए. धन्यवाद. सबको आशीष दे. धन्यवाद यीशु के नाम में. और ये लोग सफारी विधान में आशीष बोलते हैं यीशु के नाम में. आमीन. अभी पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति, प्रेरणा, सुरक्षा प्रत्येक के साथ होती रहे यीशु के नाम में. आमीन. 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जय मसीह. जय मसीह.